class, our next module is accounting from incomplete records. Now, until now, we have studied that how accounts are kept on the principle of double entry system. So such accounts, see, when I say about double entry system, such accounts record both the aspects, debit as well as credit, and it will be for all the transactions. Why? Because this accounts, because when you keep your books as per the double entry bookkeeping system, they all follow the accounting principles. हमने हमारे जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इट इज बिन फॉलोड. से फॉर एग्जांपल एंटिटी कंसेप्ट था, मैचिंग कंसेप्ट है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट है, अक्रूवल है. So all of these accounting principles are followed in the double entry bookkeeping system, and the full record is kept starting from the your prime book, that is original book, journal से लेके अपने final accounts तक सारा एक properly systematic manner में we prepare it up, and all the closing balances even of a ledger are properly listed in the trial balance, and then we prepare a final account, say trading account, profit and loss account, and the balance sheet. After recording all the adjustments, entries like outstanding हो गया, depreciation की entry हो गई, प्रीपेड की एंट्री हो गई, तो हम ये सारा कुछ किस में रिकॉर्ड करते थे? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में. बट हाउएवर क्लास, अ स्मॉल बिजनेसमैन who write only his account may not be familiar with this system. Do you all agree with me? हमारे जो छोटे छोटे ये है, से फॉर एग्जाम्पल हमारा पान वाला है, दूध वाला है, so वो this Raddi Mart है, that is a paper mart is there, they must not be following the double entry bookkeeping system. They must be finding it up the complex. उनको काफी ये लग रहा होगा कि नहीं ये काफी डिफिकल्ट है. तो हमेशा जो एक स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं ना, व्हाट दे डू, दे मे नॉट रिकॉर्ड अ कंप्लीट एंड द एक्यूरेट रिकॉर्ड्स. हम उन लोग सिर्फ पार्शियल रिकॉर्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करके सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल अब उनके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, कैश के जितने भी ये है ट्रांजैक्शंस वो इंपॉर्टेंट है. देन जी कितना अमाउंट उनको डेटर्स के पास से लेना है, दैट इज हाउ मच अमाउंट दे हैव टू रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, अमाउंट रिसीवेबल्स, एंड हाउ मच दे हैव टू पे टू देयर क्रेडिटर्स और सप्लायर्स, दैट आर द अमाउंट पेबल्स. उनको सिर्फ बेसिकली ये दो तीन चीजों के बारे में ही पता करना होता है. तो जहां पर हमारे complete and the accurate record नहीं होते अकाउंट के, जहां पर only partial records are being kept, then that accounting will be known as a single entry system. Okay, so what is a single entry system? In the single entry system of bookkeeping, you only and only record the cash and the personal accounts are maintained. Again, I am telling, cash and a personal accounts are maintained, and it is always incomplete double entry. सिर्फ हम एक की ही एंट्री पास करते हैं, हम डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं. ठीक है. सो ऑब्वियसली दिस सिंगल एंट्री जो हम प्रिपेयर करते हैं, इट इज अ प्रिपेरेशन ऑफ द अकाउंट्स बट फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. क्योंकि जब हम सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट्स रखेंगे तो क्या हमारा जो रिकॉर्ड्स होंगे वो कंप्लीट होंगे? ऑब्वियसली नहीं. So here we will be having a incomplete records, and from the incomplete records we will be preparing a single entry. समझ में आया? This class, anyone facing any of the doubt? So when I say that only personal accounts of customers and the suppliers have to be maintained, तो जो दूसरे हमारे accounts है, say for example our nominal accounts and real accounts, तो उसका क्या, उनको हम ignore करते हैं यहाँ पर, उनको हम इग्नोर करते हैं. एंड हियर वी ओनली एंड ओनली रिकॉर्ड द वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. ठीक है. अगर वो पर्सनल या तो फिर अगर वो कैश को अफेक्ट कर रहा है रिकॉर्ड करने में, तो हम वो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, और जितने अदर्स एस्पेक्ट है हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. फाइन. नाउ लेट्स स्टडी इट्स फीचर्स. के व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्रीज दिस बुक कीपिंग सिस्टम. Now, over your class, who will be recording this? ये system कौन follow कर रहा होगा? You can say only sole traders, या तो कोई partnership organization होंगी who used to keep their books of the accounts under this system. बहुत कम लोग होंगे. लार्जर स्केल पे अगर देखोगे तो sole traders ही आपको मिलेंगे जो ज्यादातर सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं.
Now the second your feature will be only cash and the personal accounts are kept. Other all the impersonal accounts and real accounts are not even maintained in this system. ठीक है, हम जब मैं आपको बोलती हूँ कैश, तो हम जो कैश के भी ट्रांजैक्शंस जो होंगे ना, तो कैश बुक में भी कंटेनिंग ओनली द प्रोप्राइटर्स पर्सनल एज वेल एज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ठीक है. देन this system of accounting varies from the business to business. There is no particular uniformity in the maintenance of the accounts under this system. Maybe एक पान वाला ऐसे सिर्फ इतना रिकॉर्ड करता होगा कि हाँ मुझे ये डेटर से पैसा मिला है, मुझे इसको पैसा देना है, वो भी उसने अपना एक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता होगा. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जितने भी टाइप्स के बिजनेसेस है सब लोग यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हैं अकाउंट्स का. ऐसा भी नहीं है. इट वेराइज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. And over here na class, there is no hard and fast rule also to be followed for recording any of the transaction. कोई ऐसा कोई भी रूल नहीं है. And basically under this system only and only one aspect of the transaction is recorded. ठीक है. अगर कैश मिला तो हम कौन से साइड रिकॉर्ड करते हैं? कैश मिलना मतलब वो हमारा रिसिप्ट हो जाता है, और जब हम कैश देते तो वो हमारा क्या हो जाता है? पेमेंट हो जाता है. कोई कोई तो ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जहां पर हम ना तो डेबिट रिकॉर्ड करेंगे ना तो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे. अब देखो फॉर एग्जांपल यू आर नॉट मेकिंग अ रियल अकाउंट, तो आप जो भी परचेस करोगे असेट्स के, तो ऑब्वियसली रियल अकाउंट नहीं बना रहे हो, तो आप असेट्स अकाउंट भी नहीं बनाओगे. तो हाउ यू विल बी चार्जिंग द डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन का तो पूरा एंट्री यू विल बी दिस इग्नोरिंग, बिकॉज हियर वी आर नॉट मेंटेनिंग द नॉमिनल अकाउंट्स. कोई कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे सिर्फ पार्टली जो रिकॉर्ड होते होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्रेडिट सेल किया है मेरे डेटर्स को, तो हियर एज आई टोल्ड यू कि वी आर ओनली एंड ओनली मेकिंग द पर्सनल अकाउंट. तो अगर मैं सिर्फ डेटर्स अकाउंट में बना रही हूँ तो मेरा सेल रजिस्टर तो मेंटेन ही नहीं होगा, है ना. सो दिस आर सर्टेन ऑफ योर फीचर्स ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम. नाउ क्लास, ये सिस्टम का एडवांटेजेस भी है एंड दिस सिस्टम हैव अ सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल. सो लेट्स फर्स्ट स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, कि ये सिस्टम की कौन सा इसका एग्जांपल क्या है. As I told you class, the system of incomplete record is also known as single entry system of accounting. This statement is very important from your this objective point of view. So what can be the advantages? It will be quick and easy to maintain. Even a layman can maintain it up. जिसको अकाउंटिंग का, जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिसके पास अकाउंटिंग का बेस नहीं है, वो भी लेमैन भी कर सकता है. इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है. इवन आपको कोई क्वालिफाइड अकाउंटेंट भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Now where it is useful in the smaller organization where the volume of the activity is not quite larger. प्लस ये इकोनॉमिकल भी है, एज आपको कंप्रेहेंसिव पूरे रिकॉर्ड्स नहीं बनाने, आपको ना जर्नल बनाना है, ना लेजर बनाना है, ना ट्रायल बैलेंस बनाना है. So it is quite simple method of recording and even it is less costlier when I compare it with the double entry bookkeeping system. यहाँ पर अगर मुझे डिटरमाइन करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट या तो कितना लॉस हुआ, तो आई कैन इजीली डिटरमाइन इट अप. सो नाउ द सिस्टम हैव सर्टेन एडवांटेजेस, बट एडवांटेजेस के साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी है. सो व्हाट ऑल आर द डिफेक्ट्स? क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं ये सिस्टम के? Yes, it do suffers from many of the defects. So you need to first identify कि what all are your limitations, what all are your disadvantages, what are your defects in this. ठीक है. It is, see, सबसे पहला तो हमारा यही एक डिफेक्ट है कि it is not based on recognized accounting principles. हम double entry bookkeeping system में what we do? We maintain the accounts as per the accounting principles, but here we are not following any of the principles. Okay, here you are not preparing any of the principle. It even does not record some, as I told you कि हमने depreciation का example दिया, it even does not record both of the aspects of the transaction. तो क्या होगा? एक complete transaction will be omitted, because here
you are only and only keeping the cash in the personal accounts. तो जो भी आपके real accounts है, assets and liabilities के related, इनका फिर आपके जो nominal accounts है, income and expenses related, वो तो आप उसको रखोगे ही नहीं. It has not been kept only. लेजर नहीं बनाओगे तो लेजर के बैलेंसेस नहीं होंगे, लेजर बैलेंसेस नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. एंड अगर ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर करोगे तो इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू वेरीफाई द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ योर अकाउंट्स. यहाँ पर आप देखो, इफ यू वांटेड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस में, कितनी अर्निंग्स हो रही है, यू कैन नॉट मेक इट बिकॉज यू आर नॉट इवन मेकिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट, नाइदर यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ना तो आप इजीली ग्रॉस प्रॉफिट को असर्टेन कर पाओगे, या ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, और यू कैन से द नेट प्रॉफिट और अ नेट लॉस, यू कैन नॉट इवन असर्टेन इट अप. So, and even one more thing class, as the records are incomplete, so hence they are unreliable. आप उसके ऊपर rely नहीं कर सकते. Such records are not even accepted or recognized by the law. अगर मैं बैंक में जाऊंगी इसके बेसिस पर लोन लेने, I won't be getting the loan as well. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ये मेरे रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा. कोई लेंडर्स भी मुझे रिजेक्ट कर देंगे अगर मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन किया तो. एंड कंपनीज एक्ट, द बेसिकली द मोर इम्पोर्टेंट वन इज द कंपनीज एक्ट ही मुझे अलाउ नहीं कर रही है. द कंपनी एक्ट डज नॉट अलाउ मी, allow a limited company to adopt this system. A limited company needs to follow the double entry bookkeeping system. And even when you are not preparing over here the final accounts, obviously it would be difficult to know the exact final position of the business. मेरा परफॉर्मेंस कितना है या तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, आप वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. करेक्ट? एनीवन फेसिंग एनी ऑफ द डाउट टिल हियर? Any doubt till here? Till now we have completed with the meaning, features, advantages, and we saw the disadvantages. Anyone facing any of the doubt?